1 year Bible reading plan. Matthew 5 chapter 1 to 20 verse and Genesis 12 chapter 13 chapter 14 chapter. 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 से 20 वचन और उत्पत्ति 12 अध्याय 14 अध्याय, मतलब 12 से 14, 12 अध्याय 13 अध्याय 14 अध्याय। हम इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे और हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 5 1 to 20 वर्स पहले पढ़ेंगे। Who are blessed, the disciples called the salt of the earth and light of the world. Christ urgeth on them a good example, etc. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। And seeing the multitudes, he went up into a mountain, and when he was set, his disciples came unto him. And he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye, when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? It is there thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Whatsoever therefore shall break one of these least commandments and shall teach men, so he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. For I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 वचन से 20 वचन तक। यीशु का पहाड़ी उपदेश। पहले वचन से पढ़ेंगे। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए।
और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। धन्य वचन, तीसरे वचन से पढ़ेंगे। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुम से पहले थे इसी रीति से सताया था। नमक और ज्योति, 13 वचन से आगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता को जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। व्यवस्था की शिक्षा, 17 वचन से आगे। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य के महान में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। उत्पत्ति की पुस्तक, जेनेसिस चैप्टर 12, पहले वर्ष से पढ़ेंगे। Genesis chapter 12. God calleth Abram and blesseth him with a promise of Christ. He departs from Haran, Canaan promised. First verse से पढ़ेंगे। Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. So Abram departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him. And Abram was 75 years, and when he departed out of Haran, and Abram took Sarah
Sarai, his wife, and Lot his brother's son, and all their substance that they had gathered, and the souls that they had gotten in Haran, and they went forth to go into the land of Canaan, and into the land of Canaan they came. And Abram passed through the land unto the place of Shechem, unto the plain of Moreh, and the Canaanite was then in the land. And the Lord appeared unto Abram and said, Unto thy seed will I give this land. And there builded he an altar unto the Lord, and altar unto the Lord, who appeared unto him. And he removed from thence unto a mountain on the east of Bethel, and pitched his tent, having Bethel on the west, and Hylon in the on the east. And there he builded an altar unto the Lord, and called upon the name of the Lord. And Abram journeyed, going on still toward the south, and there was a famine in the land. And Abram went down into Egypt to sojourn there, for the famine was grievous in the land. And it came to pass, when he was come near to enter into Egypt, that he said unto Sarai his wife, Behold now, I know that thou art a fair woman to look upon. Therefore it shall come to pass, when the Egyptians shall see thee, that they shall say, This is his wife, and they will kill me. But they will save thee alive. Say, I pray thee, thou art my sister, that I may be well with me, that it may be well with me for thy sake, and my soul shall live because of thee. And it came to pass that when Abram was come into Egypt, the Egyptians beheld the woman, that she was very fair. The princes also of Pharaoh saw her, and commended her before Pharaoh. And the woman was taken into Pharaoh's house, and he entreated Abram well for her sake. And he had sheep and oxen, and he asses, and men servants and maid servants, and she asses and camels. And the Lord plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai, Abram's wife. And Pharaoh called Abram and said, What is this that thou hast done unto me? Why didst thou not tell me that she was thy wife? Why sayest thou, She is my sister? So I might have taken her to me to wife. Now therefore, behold thy wife, take her and go thy way. And Pharaoh commanded his men concerning him, and they sent him away, and his wife and all that he had. Chapter 13. Abram and Lot returned from Egypt. They part asunder. Lot goes to Sodom. God's promise renewed to Abram. He goeth to Hebron, and there builds an altar. First verse से पढ़ेंगे. And Abram went up out of Egypt, he and his wife, and all that he had, and Lot with him into the south. And Abram was very rich in cattle, in silver, and in gold. And he went on his journeys from the south even to Bethel, unto the place where his tent had been at the beginning, between Bethel and Hal. High, unto the place of the altar which he had
made there at the first, and there Abram called on the name of the Lord. And Lot also, which went with Abram, had flocks and herds and tents. And the land was not able to bear them, that they might dwell together, for their substance was great, so that they could not dwell together. And there was a strife between the herdsmen of Abram's cattle and the herdmen of Lot's cattle. And the Canaanite and the Perizzite dwelt then in the land. And Abram said unto Lot, Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen, for we be brethren. Is not the whole land before thee? Separate thyself, I pray thee, from me. If thou wilt take the left hand, then I will go to the right. Or if thou depart to the right hand, then I will go to the left. And Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere, before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. Then Lot chose him all the plain of Jordan, and Lot journeyed east, and they separated themselves the one from the other. Abram dwelt in the land of Canaan, and Lot dwelt in the cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom. But the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. And the Lord said unto Abram, after that Lot was separated from him, Lift up now thine eyes, and look from the place where thou art northward and southward and eastward and westward. For all the land which thou seest, to thee will I give it, and to thy seed forever. And I will make thy seed as the dust of the earth, so that if a man can number the dust of the earth, then shall thy seed also be numbered. Arise, walk through the land in the length of it, and in the breadth of it, for I will give it unto thee. Then Abram removed his tent and came and dwelt in the plain of Mamre, which is in Hebron, and built there an altar unto the Lord. Chapter 14. The battle of 4 kings against 5. Lot taken prisoner is rescued by Abram. Melchizedek blessed Abram. Abram giveth him tithes. First verse. And it came to pass in the days of Amraphel, king of Shinar, Arioch, king of Eleazar, Elasar, Chedorlaomer, king of Elam, and Tidal, king of nations, that this made war with Bera, king of Sodom, and Barsha, king of Gomorrah, Shinab, king of Admah, and Shemeber, king of Zeboim, and the king of Bela, which is Zoar. All these were joined together in the vale of Siddim, which is the salt sea. 12 years they served Chedorlaomer, and in the 13th year they rebelled. And in the 14th year came Chedorlaomer and the kings that were with him, and smote the Rephaim sin, Ashtaroth, Karnaim, and Zuzims in Ham, and Emims in Shaweh Kiriathaim. And the Horites in their Mount Seir unto
El Paran, which is by the wilderness. And they returned and came to En Mishpat, which is Kadesh, and smote all the country of the Amalekites, and also the Amorites that dwelt Hazezon Tamar. And there went out the king of Sodom, and the king of Gomorrah, and the king of Admah, the king of Zeboim, and the king of Bela, the same is Zoar. And they joined battle with them in the vale of Siddim, with Chedorlaomer, the king of Elam, and with Tidal, king of nations, and Amraphel, king of Shinar, and Arioch, king of Belasor, 4 kings with 5. And the vale of Siddim was full of slime pits, and the kings of Sodom and Gomorrah fled and fell there, and they that remained fled to the mountain. And they took all the goods of Sodom and Gomorrah, and all their victuals, and went their way. And they took Lot, Abram's brother's son, who dwelt in Sodom, and his goods, and departed. And there came one that had escaped, and told Abram and Hebrew, for he dwelt in the plain of Mamre, the Amorite, brother of Eshcol, and brother of Aner. And these men confederated confederate with Abram. And when Abram heard that his brother was taken captive, he armed his trained servants born in his own house 318, and pursued them unto Dan. And he divided himself against them, he and his servants by night, and smote them, and pursued them unto Hobah, which is on the left hand of Damascus. And he brought back all the goods, and also brought again his brother Lot, and his goods, and the woman also, and the people. And the king of Sodom went out to meet him after his return from the slaughter of Chedorlaomer, and of the kings that were with him at the valley of Shaveh, which is the king's dale. And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. And he blessed him, and said, Blessed be Abram of the Most High God, possessor of heaven and earth, and blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thy hand. And he gave him tithes of all. And the king of Sodom said unto Abram, Give me the persons, and take the goods to thyself. And Abram said to the king of Sodom, I have lifted up mine hand unto the Lord, the Most High God, the possessor of heaven and earth, that I will not take from a thread even to a shoe lashet, and that I will not take anything that is thine, lest thou shouldest say, I have made Abram rich, save only that which the young men have eaten, and the portion of the men which went with me, Aner, Eshcol, and Mamre, let them take their portion. उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय से लेकर 14 अध्याय तक पढ़ेंगे। परमेश्वर की ओर से अब्राम के बुलाए जाने का वर्णन। पहले वचन से, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे।
यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सब को लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहाँ से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर आई है। वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। और अब्राम आगे बढ़ कर के दक्षिण देश की ओर चला गया। मिस्र देश में अब्राम 10 वचन से आगे। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राम मिस्र देश को चला गया कि वहाँ परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारै से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उनकी पत्नी है। इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे, पर तुझको जीती रख लेंगे। अतः यह कहना, मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है, और फिरौन के हकीमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई, और फिरौन ने उसके कारण अब्राम की भलाई की और उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियां, गदहे गदहियां और ऊंट मिले। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी सारै के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने अब्राम को बुलवा कर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी, और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। अब्राम और लूत के अलग होने का वर्णन। 13 अध्याय पहले वचन से। तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लोत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रूपे का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उस स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ऐ के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। और वहां अब्राम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। लोत के पास भी, जो अब्राम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके।
अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोवर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। अब्राम का हेब्रोन को जाना। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहाँ भी यहोवा की एक वेदी बनाई। अब्राम का लूत को छुड़ाना। 14 अध्याय पहले वचन से। शिनार के राजा अम्रापेल और एल्लासार के राजा अर्योक और एलाम के राजा कदोलाओमेर और गोयेम के राजा तीदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरशा और अदमों के राजा शिनाब और सबोयेम के राजा शमेबेर और बेला जो सोअर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सिद्दीम नामक तराई में जो खारे ताल के पास है एका किया। 12 वर्ष तक ये कदालाओमर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरोध विद्रोह किया। 14वें वर्ष में कदोलाओमेर और उसके संगी राजा आए और अशतरोत्कानम में रपाइयों को और हाम में जूजियों को और शाबे किरियातैम में एमोइयों को और सेईर नामक पहाड़ पर होरियों को मारते मारते उस एलपारान तक जो जंगल के पास है पहुंच गए। वहां से वे लौटकर एनमिशपात को आए जो कादेश भी कहलाता है, और अमेलिकियों के सारे देश को और उन एमोरियों को भी जीत लिया जो हससोनतामार में रहते थे। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोयिम और बेला जो सोअर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सद्दीम नामक तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पांति बांधी, अर्थात एलाम के राजा कदोरलाओमेर, गोयेम के राजा तीदाल, शिनार के राजा अमरापेल और एल्लासार के राजा अर्योक, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पांति बांधी। सिद्दीम नामक तराई में जहाँ लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े।
और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन जो भाग कर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी ममरे जो एशकोल और अनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था। और ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया। और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। मलकीसिदक का अब्राम को आशीष देना। 17 वचन से आगे। जब वह कदोरलाओमर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मलकीसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूँगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात अनेर, एशकोल और ममरे में, मैं नहीं लौटाऊंगा। वे तो अपना अपना भाग रख ले। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान हमने जैसे तय किया है कि हम आपको बता देंगे किस प्रकार से 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान में आज का अध्याय है, और आपने और हमने क्या करना है, इकट्ठे ये अध्याय जो 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान है इनको लेना है और पर्सनल बाइबल स्टडी में इसका इस्तेमाल करना है। हमने इसको पर्सनल बाइबल स्टडी में यूज़ करना है, उसको विस्तार से हमको सीखना है, क्योंकि ये सारे अध्याय पहले हम 1 साल के बाइबल रीडिंग में ऊंची आवाज़ में बोल लिए हैं। अब हमको मनन करने के लिए आराम से उसके एक एक वचन को लेके अभ्यास करने में यही दोबारा 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में प्राप्त हो रहे हैं। तो इसके लिए हमने इसको रीडिंग प्लान है ये, और हम उसको स्टडी प्लान में ले रहे हैं। ठीक है, 2 इयर्स बाइबल रीडिंग प्लान में अगर आप ये स्टडी करेंगे तो आपको पढ़ के भी हो चुका है ये अभी वचन, और आगे आपको उसका विस्तारित अलग अलग बाइबल के अंदर से, प्रचार के अंदर से इन वचनों की गहराई को सीखने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। आप पढ़ भी रहे हो 1 साल के बाइबल रीडिंग में, और वही वचन आपको 2 साल के बाइबल रीडिंग में अभ्यास के लिए भी मिल रहे हैं। तो ये आपको मौका गंवाना नहीं है।
2 year बाइबल रीडिंग प्लान इस प्रकार से है: मैथ्यू 3 चैप्टर 1 to 9 एंड जेनेसिस 5 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान: मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 1 से 9 वचन और उत्पत्ति की पुस्तक 5 अध्याय। प्रभु यीशु हम सब के साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन।